Bismillahirrahmanirrahim. We've got Umar Khattak with us, a long awaited interview that was related to the science of organic food, basically, and the myths attached to the organic food. Since we have been producing and delivering organic food, daily consumables to our customers, तो अक्सर ये क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ऑर्गेनिक फूड जो है उसकी जस्टिफिकेशन आजकल के दौर में बड़ी मुश्किल से होती है क्योंकि एक सिलसिला प्रोडक्शन साइड से शुरू होता है नाउ Umar Saab is specialized in this field. He is a lecturer in Kohat University as well. He is a very old friend and a family relative of mine, and he is an artist and he is now into farming as well. So he is a multi-talented guy, a very experienced dignity. With us today is Umar Khattak. Umar Saab, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you for this elaborate introduction. Undeserved, but thank you. You deserved it. The thing is that we, being business person, I have got eye on every stakeholder of my life. ठीक है. So with you हमारी terms तो बहुत पहले से काफी एक friendly terms रही हैं. फैमिली की वजह से भी, बट फैमिली से ज्यादा हमारी और आपकी अपनी वो एक मेंटल फ्रीक्वेंसी थी जो कि काफी जगहों पर मैच करती थी. जिन जगहों पर मैच नहीं करती वहां पे भी उस इख्तिलाफ को हमने काफी positive dynamics में study किया. Umar Saab, we would like primarily to hear about your transition to this farming side. It actually started like 3 years ago. Inherited from my grandfather, my mother's father. He had a huge farm in Kohat. So, after his death, and especially after the death of my uncle, the family decided to distribute the land. So I had to do something about it, and I started involving myself in day-to-day business of the farm, and took over, distributed it immaculately, mashallah, and then started working on it. So solarized my farms, installed new tube wells, tried to introduce modern technologies into it, and the trend is towards organic foods. So let's try to introduce the organic process of producing good quality vegetables and spices. So it's healthy for the environment, it's healthy for the farm, it's healthy for all the people around us. No, Umar Saab, based on this first stance of yours, I'll just generate first question from it. You said the trend of organic food. We in the market, you being in the farming side, we being in the supply side and branding side and certification side, we both have got a bit different perspective. Though trend growth थोड़ी बहुत है in the organic food demand, but वो जो growth है that is not still sufficient enough if you synchronize it or correlate it with the income level of people. Now, the primary question is कि organic food is supposed to be a bit expensive when it is compared to the other version of food that we are having consuming right now nowadays. Not us, alhamdulillah, we are trying to stay away of it, but most of our children and next generations. तो उमर साहब, ये जो ऑर्गेनिक फूड है इसको सस्ता करने के लिए क्या किया जा सकता है? लाइक द क्वेश्चन राइज हेयर कि आप इसकी सप्लाई को किस तरह से और इसकी प्रोडक्शन को किस तरह से कम कॉस्टली करेंगे? मेरे ख्याल में इसको अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस करना पड़ेगा. Before 100 years ago, almost every farm was producing organic foods. Now, after the Second World War, when Germany, they were imposed with a lot of bans on natural manure, देसी फर्टिलाइजर जो है आपके पास गोबर जो है वो देसी फर्टिलाइजर्स उनका बैन लग गया, तो उसकी वजह से दे हैड टू प्रोड्यूस समथिंग बिकॉज उनकी फूड सिक्योरिटी और फूड शॉर्टेज थे. तो फूड सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए उन्होंने इनऑर्गेनिक मेथड्स डेवलप किए, जिसमें वो आपके पास सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो है वो उन्होंने डेवलप किए, और जिसकी वजह से अपनी फूड सिक्योरिटी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया. तो अभी इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड इन अ वे कि इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है, इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस जो है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स,
ये आपकी फूड सिक्योरिटी को मसले हल कर देते हैं, क्योंकि आपके पास यूनिफॉर्म फूड आता है, आपके पास ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होती है, और इनऑर्गेनिक फूड में आपके पास आप डिमांड्स को मीट कर सकते हो, आप सप्लाई इतना कर सकते हो कि आप डिमांड मीट हो सकती है। ऑर्गेनिक ऑन द अदर हैंड एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल मैन्योर्स इस्तेमाल होते हैं उसमें आपके पास नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से एक तो फूड जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से सब एक जैसे नहीं निकलते, और उसके बाद वो थोड़े से साइजेस में भी कम होते हैं, वेट भी उनका कम होता है, और वो एक स्लो प्रोसेस है जो कि सॉइल फर्टिलिटी को बेहतर बनाता है, तो जिसकी वजह से वो उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो और वो इट्स सिमिलर फॉर थ्रू आउट द वर्ल्ड, आपके पास दुनिया में हर जगह पे इनऑर्गेनिक जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है और ऑर्गेनिक जो है वो कम प्रोडक्शन होती है, क्योंकि आपके पास इट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस ये है कि आप किस तरीके से फूड को प्रोड्यूस कर रहे हो। ऑर्गेनिक तरीके से फूड को प्रोड्यूस करना ऑर्गेनिक तरीका हो जाता है, ठीक है, आपके पास जिस तरह आप नेचुरल मैन्योर्स इस्तेमाल करो, आप जो गोबर है वो इस्तेमाल करते हो, और इस तरह हमारे पास हम कोशिश करते हैं कि जितने भी फार्म एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिक मीन्स समथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनऑर्गेनिक मीन्स समथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह मिनरल्स हैं आपके पास, मिनरल्स से हम आपके पास फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, सिंथेटिक डीएपी बनता है, सोने यूरिया बनता है, तो आपके पास ये चीजें जो है ये मिनरल्स से बनते हैं, जो कि अलाइव नहीं है, जो कि जिंदा नहीं है, तो उनसे फिर जब हम सॉइल की फर्टिलिटी को बेहतर बनाते हैं, जिस सॉइल फर्टिलिटी बेहतर हो जाती है जिसमें आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में सॉइल की फर्टिलिटी बेहतर होती है, लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस है, वो आपके एकदम से एक टाइम में आपके पास आप अगर मैन्योर बहुत ही ज्यादा भी डाल दे तो कैन वी से हर आने वाली प्रोडक्शन अगर ऑर्गेनिकली होती तो कंपैरेटिवली पिछली वाली से फिर भी थोड़ी सी ज्यादा होती? वाली से ज्यादा होगी, लेकिन ये होगा कि इसमें इनऑर्गेनिक का मुकाबला वो नहीं कर सकेगी प्रोडक्शन यहाँ से। अगर हमने ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसमें हमने इनऑर्गेनिक की तरफ जाना होगा, और अगर हमने क्वालिटी प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास फिर ऑर्गेनिक मेथड्स है। ऑर्गेनिक मेथड्स थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं क्योंकि इसमें फूड वेस्टेज ज्यादा होता है। मोनोकल्चर क्रॉप्स जो होते हैं इसमें I used to tell people अक्सर कि अगर ऑर्गेनिक जस्ट लाइक यू सेड कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन प्रोसेस हैं थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बट लाइक अगर ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं तो वो आपकी मेडिकल कॉस्ट को काफी कम कर रहे हैं, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन वो उसको काफी कम कर रहे हैं, तो पीपल रियलाइज दिस थिंग एज वेल। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट काफी ज्यादा है, इसकी लोगों के हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाती है। आपने जैसे कहा कि हॉस्पिटलाइजेशन जो वो कम हो जाती है, आपके पास हेल्थियर लोग मीनिंग लेस इल पीपल इन द हॉस्पिटल्स, सो वो बेहतर हो जाता है, लेकिन इट इज एक्सपेंसिव है और वो इतना ज्यादा हमारे पास है नहीं। एक फनी स्टोरी है, मतलब एक फैक्ट है फनी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर किसी को ऐसा आइलैंड मिले जहां पे बर्ड्स के जो आपके पास मेन्योर है वो बहुत ज्यादा पड़ा हो, तो आप उस आइलैंड को क्लेम करो और यूएस की नेवी जाएगी वहां पे और उस आइलैंड को यूएस का हिस्सा बना देगी। वो इसलिए था कि उस वक्त आपके पास और फर्टिलाइजर्स थे नहीं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नहीं थे, तो जहाँ पे ट्रेडिशनली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से बर्ड्स आके नेस्टिंग करते हैं, बर्ड्स आके अपनी अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, तो वहाँ पे ऑफकोर्स उनका पूप गिरता है, वहाँ पे उनका मैन्योर गिरता है, और वो फिर सॉलिडिफाई होकर रॉक्स बनते हैं, और फिर वो रॉक्स को शिप्स में डाल के फिर अपने फार्म्स तक लेके जाते थे ताकि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इंक्रीज कर सके। अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं करते तो उसके अपना ही तकरीबन 60-70 साल हमें सॉइल जो है वो प्रोड्यूस कर देगा फूड, उसके बाद वो डेड हो जाएगा। तो उसकी हमने जिंदा रखना होता है उसको, तो इसके लिए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए उस सॉइल के अंदर, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो उसके ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे उनकी तादाद को बढ़ा देते हैं सॉइल में। And how can we differ hybrid from organic? हाइब्रिड जो है इज कम्प्लीटली डिफरेंट। हाइब्रिड ये है कि दो डिफरेंट वेराइटीज विद इन वन स्पीसीज जब आपकी क्रॉस हो जाती है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर एक टोमेटो प्लांट है दैट्स प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ टोमेटोज बट वेरी स्मॉल वंस, अनदर प्लांट व्हिच प्रोड्यूसेस बिगर टोमेटोज बट वेरी लेस क्वांटिटी, सो वी ट्राई टू क्रॉस पॉलिनेट देम कि ताकि हमारे पास एक ऐसा प्लांट आए, एक ऐसा सीड आए जो कि आपके पास ज्यादा भी दे और प्रोडक्शन करे और बड़े आपके पास टमाटर भी हो, सो वो हमारे पास फिर हाइब्रिड आ जाता है। तो हाइब्रिड नेचुरल हाइब्रिड्स भी होते हैं, जैसे गार्लिक इज अ नेचुरल हाइब्रिड ऑफ शैलेट्स, लीक्स, गार्लिक जो है आखिर में दैट कम्स फ्रॉम द इंग्लिश मिडिल इंग्लिश वर्ड लीक मींस onions, shallots, आपके पास chives, तो garlic is a natural hybrid of leek, okay? तो नेचुरल हाइब्रिड्स भी हो सकते हैं।
जो लोग ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं वो लोग इनऑर्गेनिक और जीएमओस को, मतलब जीएमओस को पहले वो हाइब्रिड बोल लेते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सीड्स जो कि लैब्स में जेनेटिकली मॉडिफाई किए जाते हैं, उनमें एक ट्रेट को कम किया जाता है, एक जीन को कम किया जाता है, एक जीन को ज्यादा किया जाता है, तो वो जो है थोड़े से अनहेल्दी हैं, वो ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते। हाइब्रिड सीड्स आर परफेक्टली फाइन। ज्यादातर 90% जो भी आपके पास प्रोडक्शन होती है वेजिटेबल्स की, तो वो ज्यादातर हाइब्रिड ही होती है, हाइब्रिड सीड्स ही होती है, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स ज्यादातर आपको बेहतर प्रोडक्शन देते हैं, उनकी वैरायटी बेहतर होती है, क्योंकि आपने एक ट्रेड और दूसरे ट्रेड को, जो एक प्लांट में एक ट्रेड था, दूसरे प्लांट में दूसरा ट्रेड था, उन दोनों को मिक्स करके एक ऐसा प्लांट बनाया, क्रॉस पोलिनेट किया उनको, एक ऐसा प्लांट बनाया जो में दोनों के ट्रेड्स होते हैं, जो कि ज्यादा प्रोडक्शन भी दे और बिगर प्रोडक्शन। इज इट पॉसिबल कि अगर आप कोई एक हाइब्रिड प्रोडक्शन प्लान करें एंड एट सम इंस्टेंस आपकी किसी गलती की वजह से वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाए? आप अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, आप अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो इट्स द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स, कि आप किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब कि आप जब सॉइल में सीड डाल दिया, हाइब्रिड सीड आपने डाला है, आपने देखिए 3 किस्म के सीड्स होते हैं, एयरलूम, हाइब्रिड्स एंड जीएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो एयरलूम सीड वो है जो कि सदियों से, जो कि कद्दू से आप सीड निकालते हो और दूसरे सीजन से कद्दू के वही सीड आप फिर बोते हो, फिर उसके बाद फिर कद्दू निकलता है, फिर वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वही सीड हमारे पास आ रहा है, तो उसे हम एयरलूम सीड बोलते हैं। हाइब्रिड सीड्स हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग से, कि एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड के आपस में हमने मिक्स करके एक नई ब्रीड बनाई है, जो कि इनमें दोनों की क्वालिटीज होती है। तो जिस तरह आपके पास कॉलीफ्लावर्स में हमारे पास ब्रोकली, हमारे पास ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ठीक है, तो ये सारे आपके पास। You won't believe the broccoli has got more protein than beef. Yes, it's the beef of vegetables. ये vegetables में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें, और इट्स वेरी पावरफुल, एंड वो एक इट्स हाइब्रिड, ये एक हाइब्रिड है। सो अभी हमने हाइब्रिड सीड डाल दिया, अभी इसको हम किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं? क्या उसमें मैं नेचुरल फर्टिलाइजर डालता हूँ, ये मैन्योर जो है, मैं जो एनिमल वेस्ट है, जो प्लांट वेस्ट है, वो डाल के उसको सॉइल को फर्टिलिटी बढ़ा के, ताकि उसको ताकत मिले और वो बेहतर बने, या फिर मैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर डालता हूँ, जिस तरह डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट हो गया, या आपके पास यूरिया हो गया, आपके पास ये चीजें मैं डाल के उसको प्रोड्यूस करता हूँ। तो ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो है, देखिए ऑर्गेनिक जो है वो नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, तो नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। आपके पास इनऑर्गेनिक जो है वो आपके पास सिंथेटिक हम खुद बनाते हैं, हम मुख्तलिफ मिनरल्स को मिक्स करके उसे हम बनाते हैं, और उसमें ज्यादा कार्बन्स नहीं होता। हाइड्रोकार्बन्स जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें आपके पास कार्बन एटम नहीं होता आपके पास इनऑर्गेनिक में। तो हम अगर इनऑर्गेनिक सिंथेटिक फर्टिलाइजर डाल दिए, हमने सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड कर दिए उसमें, तो वो ऑलरेडी ना, तो वो इनऑर्गेनिक। Certain authorities of the government of Pakistan related to the food sector and the quality control authorities, they required certain tests for each and every product that you launch in the market. We came to know in the very beginning of the initiation of our business. But uske baad, with the passage of time, when we studied the organic food, then we came to know that all the tests that they do require, उसमें से कोई भी test आपको ये नहीं बता रहा कि is it organic or inorganic. It's just they are all based on hygiene and their expiry levels वगैरह and their preservations methods. So do you believe कि in Pakistan the government authorities should also focus on asking for organic हम तो एग्रेरियन सोसाइटी है, हमारे पास तो सबसे बेहतरीन डेयरी सिस्टम है, हमारे पास सबसे बेहतरीन फर्टाइल ग्राउंड्स है जिसपे हम ग्रो कर सकते हैं, तो हमें तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इवन आपके पास यूएस में, यूके में, अगर आप कोई फूड एक्सपोर्ट करते हो, वो देखते हैं कि इसमें कितना इनऑर्गेनिक रेजिड्यू आता है। आप अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालते हो तो उसका रेजिड्यू रह जाता है उसमें, आपके पास जो वेजिटेबल्स हैं, तो वो उसमें टेस्ट करते हैं कि कितना इनऑर्गेनिक रेजिड्यू रह गया है, और फिर उसके मुताबिक एक सर्टेन परसेंटेज से अगर ज्यादा हो तो फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उसमें। I was very happy to hear once my lab technician reported to me about some inorganic particles in one of our brand, and we rejected all of that stock. तो मतलब ये practice it is possible, but like if they want to,
पॉसिबल इट इज क्वालिटी कंट्रोल। आपका क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए आपने ये टेस्ट करने होंगे, और ये तो ऑफ कोर्स अभी चाहिए कि हुकूमत की लेवल पे ये हो और वो ही ग्रांट्स दे, स्पेशली वो फूड जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो यूएस में भी हम हर एक चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक उनके अपने स्टैंडर्ड्स को हम मीट ना करें। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, कि कौन से फर्टिलाइजर आपने इस्तेमाल किए, कौन से इंसेक्टिसाइड आपने इस्तेमाल किए। आपको मैं क्या बताऊं कि इतने अजीब अजीब किस्म के, व्हाट इज एन इंसेक्टिसाइड, व्हाट इज अ पेस्टिसाइड। पेस्ट आपको मतलब रॉडेंट्स के लिए, माइस के लिए किल करने के लिए जहर है, पॉइजन। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को मारने के लिए जहर होता है। तो कितना जहर आप डालते हो फार्म पे, वेजिटेबल्स पे, और वो स्प्रे होता है ज्यादातर, ठीक है। तो आप कितना, और ज्यादा कुछ बाज जो होते हैं वो वर्म्स के लिए होते हैं, तो वो आप फ्लड करते हैं। तो फ्लडिंग पे आपने कितने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड डाले हुए हैं और कितना आपने स्प्रे किया हुआ है, तो वो तो जहर है। तो जितना जहर आपने ज्यादा डाला होगा तो उतना ही वो रेसिड्यू उनमें वेजिटेबल्स में रह जाता है और उतना डेंजरस होता है। So, sir, given the scenario, already the risk of presence of the rodents and insects, वगैरह, then if you are not using the pesticides, insecticides, वगैरह, then how can organically you play a role of a savior for your farm? This is a good question. This is $1 million question. Okay, how to save your plants? How to save your farm from rodents and insects? तो कुछ हमारे पास natural insecticides, pesticides हैं. Like I would say, garlic is a natural pesticide. ठीक है, by itself is a natural pesticide. Usually लोग pests को जो rodents वगैरह हैं, mice वगैरह हैं, उनको दूर रखने के लिए फार्म के एंड पे garlic ग्रो करते हैं edges पे, ताकि वो उसकी स्मेल से फिर वो भाग जाते हैं और वो स्मेल से फिर वो फार्म की तरफ नहीं आते हैं। और कुछ हमारे पास विनेगर बेस्ड नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि हम फंजीसाइड्स हैं जो कि हम स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट्स पे फंगस से बचाने के लिए, कुछ हमारे इंसेक्ट से बचाने के लिए। और बाज़ वक़्त हमें ये भी करना होता है कि कुछ हमने सैक्रिफिशियल प्लांट्स लगाने होते हैं एक फार्म में। हम एक फार्म है, यूजुअली मोनोकल्चर फार्म जो होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है आपके पास, क्योंकि आपने एक किस्म का वेजिटेबल लगाया हुआ है, एक किस्म के प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो उस पर इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि अगर एक दफ़ा वो आ जाते हैं तो पूरे प्लांट्स को, पूरे फार्म को तबाह कर सकते हैं। तो इसमें आपने जो नेचुरल तरीका है वो ये है कि आप कुछ सैक्रिफिशियल प्लांट्स लगाओ ताकि वो ज्यादातर इंसेक्ट्स उस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट हो और वो सैक्रिफाइस हो जाए और वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स है वो उन प्लांट्स को खा ले और हमारे अपने फार्म के जो प्लांट्स है उनको have plants that actually play the role of Vikings over here. ठीक है, they give the sacrifice too. अच्छा, even I would think the statue in the middle of the farm also plays a very vital role. आपके पास ये it helps in shutting away all the crows, जो कि all the birds, उसको shut away करने के लिए बहुत ज़्यादा ये काम आ जाते हैं। बाज़ लोग ये भी करते हैं कि यार वो अपने जो उनके जो फार्मर्स होते हैं उनके बच्चे जो हैं वो पूरे दिन में उनकी बारी होती है कि वो जो चिड़िया है जो और आपके पास ये बर्ड्स आते हैं तो उसको खराब करने के लिए उनको फिर वो भगाते रहते हैं उनको। It will be shocked to hear कि still like I was working with an incubation center of the government of Pakistan. Over there I came across some other startups ideas. So even the government is sponsoring ideas like creation of farming or agriculture based drones and उसके through insecticides and pesticides वगैरह कराते हैं just to reduce the burden on a farmer. But like on the other hand they're not thinking of what actually they are causing to the other generations. True, ये फूड इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए we need to produce more. Okay. हम अगर चाहें कि सबके पास हर एक चीज अवेलेबल हो, हर एक खुराक में जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स जो हर एक मुख्तलिफ प्लांट्स में होते हैं, तो वो हर एक के लिए अवेलेबल हो, तो उसके लिए हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा। और वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास फिलहाल जो तरीका है हुकूमत के पास जो वो यही है कि यार इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, पेस्टिसाइड स्प्रे करो और उसके बाद सिंथेटिक फर्टिलाइजर डालो। तो आपकी बात सही है, अगर ये इससे शिफ्ट हो rather than having like drones fly over फार्म्स के वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को स्प्रे करें, उससे बेहतर है कि हमारे पास ऑर्गेनिक मेथड्स को ज़्यादा डेवलप किया जाए और उनको फिर इन प्रैक्टिस भी लिया जाए। ठीक है, क्योंकि लास्ट ये प्रैक्टिस होते थे लास्ट 78 ईयर्स पहले ये सारे प्रैक्टिसेस ऑर्गेनिक भी होते थे। अभी जब उन्होंने सिंथेटिक, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करनी थी, तो प्रोडक्शन ज़्यादा के लिए तो ऑफ कोर्स फार्मर तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है। डजंट केयर अबाउट द रॉडेंट्स के कितने माइस मरे, कितने रैबिट्स मर गए, वो तो खुश होता है कि यार मेरे कितने मन गंदम हुआ, मेरे कितने मन कॉर्न हुआ, तो उस पर ज़्यादा खुश होता है। कितने क्रोज मरे, उसकी डजंट केयर अबाउट इट, वो तो ये चाहता है कि कॉर्न ज़्यादा हो या फिर आपकी वीट ज़्यादा हो, तो वो फिर ऑफ कोर्स दे गो फॉर
इनऑर्गेनिक मेथड्स। वो तो ये इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की पॉलिसी से स्टार्ट हो गए और फिर लोकल लेवल पे जो फार्मर है उसको एजुकेट करना कि यार क्या चीज़ें हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बेहतर करेंगे। और इवेंचुअली हमने कोशिश ये करनी है कि हमने सॉइल की फर्टिलिटी को बेहतर करना है कि सॉइल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सॉइल जब भी कहीं भी आप लैंड देखो तो वो कोशिश करता है अपने आप की कुछ ना कुछ ग्रो करे अपने आप के ऊपर, या फिर उस पर आपकी घास हो जाती है या फिर उसके श्रब्स हो जाते हैं कुछ, ये फाइनली सॉल्ट निकल आता है। जब सॉल्ट्स निकल आते हैं तो आपको पता है कि इट्स ऑलमोस्ट डेड। वो आपके पास इट्स डन, वो आपके पास बैरन हो चुका है, वो डेड हो चुका है। तो हम अगर चाहते हैं कि सॉइल जो बेहतरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म बने तो उसके लिए हमें उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी को ज्यादा करना होगा। तो वो तभी हो सकता है जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स इस्तेमाल करेंगे। Okay, we as an enterprise of organic food, we have already improved a lot in our research and development in the agriculture side, like and having people like you in our contact is quite a privilege. But we haven't still jumped into the livestock side. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, बट जमा लिटरली ला मागजा नदी पे खलास। ठीक सो how can we say कि हाँ this lamb is organic and this is not inorganic? All living organisms are organic essentially, but what they've been fed, ठीक है, उससे हमें पता लगता है कि इनकी मीट में रेजिड्यू कितना होगा, ऑर्गेनिक रेजिड्यू होगा, इनऑर्गेनिक। अगर उनको हम इनऑर्गेनिक क्रॉप्स अगर जो है जो इनऑर्गेनिक तरीके से जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हुए होते हैं अगर वो उनको खिलाते हैं तो आपके पास वो उनमें रेजिड्यू ज्यादा होता है। इसलिए तो आपके पास वैगू बीफ जापान वो बहुत ज़्यादा फेमस है, या फिर आपके पास जो पार्मिजानो रेजियानो चीज़ इन इटली वो बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज दे आर ऑल ग्रास फेड। वो ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिक ग्रास, नेचुरल ग्रास जो होता है उनके माउंटेन्स पे वहाँ पे फीड वो करते हैं वो उनको, और वो पे नेचुरली ग्रेजिंग करते हैं और उसी ग्रेजिंग से उनके पास जो क्वालिटी ऑफ मिल्क आता है या क्वालिटी ऑफ बीफ आता है दैट्स फार फ्रॉम बेटर। तो हमने हमारे ये कि पाकिस्तान में मैं कहूँगा इस वक्त हमारी की खुशकिस्मती है कि हमें अभी भी ऑर्गेनिक ग्रास फेड एनिमल्स देखने को और खाने को मिलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो विलेजेस साइड पे हैं बिकॉज द फार्म फीड जो है वो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एनिमल फीड एक्सपेंसिव है, तो लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि और उनको एक पहाड़ की तरफ लेके जाओ और एक गांव में एक बंदे को जिम्मेदारी दी होती है और वो पूरी गांव के जो 30-35 जो आपके पास जानवर है, बड़ा जानवर है, वो उसको उसके पहाड़ की तरफ लेके जाता है और उसको वहाँ पे नेचुरली ग्रेजिंग वो करते हैं और नेचुरल जो आपके पास सारे हर्ब्स जो होते हैं, नेचुरल हर्ब्स वो भी खा रहे होते हैं और आपको न्यूट्रिएंट्स उनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो अगर हम कॉन्स्टेंटली इनऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस्ड कॉर्न फीड और उनको दें जो जिसको हम वांडे बोलते हैं, अगर वो उनको हम खिलाएं तो फिर उससे मिल्क की क्वालिटी भी प्रोसेस फूड उनकी मिल्क की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, उनकी ऑफ कोर्स मीट क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। Okay, so you've got a lot of students you have been teaching to different subjects, but like क्या कभी उनके mindsets को आपने रीड करने की कोशिश की है कि वो उनका फूड कंजम्पशन एंड हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में क्या माइंडसेट होता है? I would say they're not they don't know about they just want to have better food and they think better food is western food जो है जिस मेंटालिटी से वेस्ट जा रहा है उसी के मुताबिक अगर हम जाए तो वो भी बेहतर फूड होगा। जिस तरह हमने पोल्ट्री को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया, आपके पास अभी जो नेचुरल अकरिंग हमारे पास जो अपने ब्रीड्स थे पोल्ट्री के वो खत्म हो रहे हैं और आपके पास जो बाहर से जो हमने मुख्तलिफ जो ब्रीड्स लेके आए हुए हैं उनसे हम उन्हीं को पोल्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए था क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करनी थी, तो वो तो ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमने वो किया था। उनको स्पेशल फीड्स दी जाती है और फीड्स भी इनऑर्गेनिक तरीके से प्रोड्यूस हुई होती है, तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन वो ज़्यादातर कोहाट यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर कोहाट के सबब से लोग आते हैं और रूरल एरिया से आते हैं, तो उनकी अपनी जो है जो वो खा रहे होते हैं वो मुझे अंदाजा है कि वो थोड़ा सा बेहतर खा रहे होते हैं एज कम्पेयर टू पीपल लिविंग इन सिटीज, तो वो थोड़ा सा बेहतर उनका होता है। लेकिन उनका भी मोटिवेशन यही है कि सिटीज की तरफ जाए, उनका भी मोटिवेशन यही है कि वो जो वेस्टर्न तरीके हैं वो बेहतर है।
What do you think, like, after visiting our office, after watching our setup and what we are doing and what we are trying to achieve in organic? So do you look forward to any sort of MOUs possibly being signed between you and us in future regarding livestock and regarding the agriculture side? First of all, the first question, when I visited your offices, I'm really impressed. It's brilliant. And you told me the story how you began it all. So it's a great endeavor. Very few people that I know have actually been so motivated to start something by themselves and then lead it to a big organization. What you're doing is extremely important right now. Not because you're making money for a lot of people working with you, but you're making healthy products for people to consume, or you're contributing to the overall health of the community. And of course, there is great potential in of us working together. I think we can have MUs regarding garlics. We produce organic garlics. Exactly. And having a mindset of a research mentality, we can proceed with much more wonders in the organic industry, inshallah. Exactly. So last but not the least, I would like to tell my viewers that this was the first podcast with Umar Saab, and we hope you would have learned many things in this, and based on the feedback from you guys and the comments that we will come across, we welcome all sorts of comments, either in our favor or against us. Based on them, we are going to then go for the second episode to generate the questionnaires from you guys, and to address them is basically our target. क्योंकि आज के दिन तो basically हमारा और उमर साहब का आपस में interaction का दिन था. The next episodes are going to be totally with you questions, inshallah. We'd like to thank you so much for visiting here, Umar Saab, and we'd like you to schedule a visit of you in every month to Jan's Enterprises, inshallah, and look forward to. It's a pleasure. Thank you.